यस मैम। Okay, what's that challenge, Rupesh? मैम वर्डप्रेस ना ओपन नहीं हो रहा। Open नहीं हो रहा है. Okay, can you please share your screen? या मैम वेट। Yeah, please. Okay, fine. Okay, so you are done with your domain name and hosting purchase with the help of Hostpay. That's completely fine, Rupesh. Okay. Yes. यस मैम। Okay, that's fine. That's fine. Can you please click on your sports system, because here you can see you will also get one answer, right, regarding your sport ticket. Can you please click on this ticket again? Ticket section. Can you please click here? Ticket section. Yes. Click on this ticket button. Yes, yes. Click here. I just want to see what's the answer right now you are getting. Click on this issue, technical issue. Yeah, please click here. I just want to see the response from the backend. Okay. Uh, okay, that's completely fine. Can you please visit on your website again? डैशबोर्ड में मैम। Yes, yes. You can just visit with the help of dashboard. Have you done with your website creation? Website creation आपका हो गया है? मैम एक्चुअली ना वर्डप्रेस लॉगिन नहीं हो रहा ना उसके Uh, बाद। okay, let me do one thing. Let me just stop share your screen and please just look at my screen. Okay, just please help me out with your website name. What's your website name? Please help me out. मैम माई डिजिटल स्फीयर। Okay, let me add my digital. डिजिटल स्फीयर। Uh, can you please spell out? SPHERE। Okay, digital sphere. Okay, dot XYZ. या मैम। Okay, after that you have to add backslash WP minus admin. Okay. या After that, here you can see 404 page not found. Okay. Are you sure? Can you please just check the spelling again? My digitally sphere dot XYZ. Is it correct? यस मैम। Okay, that's completely fine. Then please share your host fee credentials with me. Please share your host fee credentials with me. Please share this login ID and password with me. You can use मैं chat window. Yes, you can just share in the chat window. वेट मैम। Yeah, please. I will just check and resolve this issue. Don't worry. Okay. ओके मैम। Yeah. Okay, that's fine. Yeah, please add your password there. Rupesh, please add your password. वेट मैम। Password of this host fee. After adding this email ID, I also need one password. मैं सेंड कर रहा हूँ मैम वेट मैम। Okay, that's fine. That's fine. आपको एवरीवन में सेंड करने की नीड नहीं है. आप डायरेक्टली सिलेक्ट करके भी सेंड कर सकते हो एंड बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो. ओके. आप ओके यूजर्स में मैम। जाके बाद में आप अपने आईडी पासवर्ड को चेंज कर सकते हो. मैं रुपेश @788। आप इसको टाइप कर सकते हैं. ओके मैम। मैम कर दिया। यस यस. रिसिप्ट. प्लीज चेक योर लॉगिन credentials. Just give me 1 minute, Rupesh. Just give me one. मैं स्मॉल आर आएगी।
Yes, Rupesh. Sorry for inconvenience. So let me just continue. Yes, Rupesh. Can you please just help me out with your email ID and password again? Because here you can see there is an issue with your password. मैम पासवर्ड में ना रुपेश स्मॉल लेटर आएगा, आर। Okay, R आपका small रहेगा. That's fine. That's fine. Let me just simply click on login button and now you can see. Okay, that's completely fine. ठीक है. Basically आपको यहाँ पर issue आ रहा है my digitally sphere.xyz. ठीक है. ID आपकी fine है. एक बार just मैं इसको check कर रही हूँ. Okay. ओके एंड मैम। अगर केस ये हमारा अभी रिजॉल्व नहीं होता है विद इन 5 मिनट्स, देन हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे रुपेश, एंड मैं इसका रेजोल्यूशन आपको क्लास के बाद दे दूंगी. ठीक है. क्लास के बाद ओके मैं मैम। इसको अपने एंड पर जस्ट रिजॉल्व कर दूंगी आपका ये जो भी इशू यहाँ पर आ रहा है. राइट, एंड देन वी कैन चेक. Okay, database is edited here by default. Okay, let's do one thing. Visit on WordPress Manager. No installation WordPress. ये देखो यहाँ पर आपका जो WordPress इंस्टॉलेशन है वो नहीं दिखा रहा है. लेट मी डू वन थिंग. मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल कर देती हूँ. ठीक है. इट सीम्स कि आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का ट्राई तो किया था, आपका डाटाबेस यहाँ पर क्रिएटेड है, बट ये आपका यस मैम। सक्सेसफुली क्रिएटेड नहीं हो पा रहा है. ठीक है. बट डोंट वरी, इसको हम यहाँ पर रिजॉल्व करते हैं. ये देखिएगा, एक तो आपने डब्ल्यूपी को रिमूव नहीं किया. मैं मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट करती हूँ, डोंट इंक्लूड डब्ल्यूपी इन योर डायरेक्टरी. फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यहाँ पर मुझे डब्ल्यूपी मिलता है. आई डोंट नो व्हाई. अगर आप डब्ल्यूपी को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट कैसे ओपन होगी? डब्ल्यूपी को रिमूव करना मैंडेटरी है. डायरेक्टरी इज अ काइंड ऑफ फोल्डर. अगर आप डब्ल्यूपी ऐड कर रहे हैं यानी कि आप अपनी फाइल को किसी सेकंड फोल्डर में इंस्टॉल कर रहे हो. ओके, तो हमें डब्ल्यूपी ओके को ऐड नहीं करना है. लेट मी जस्ट इंस्टॉल इट अगेन. हियर यू कैन सी https your website, just remove this wp. राइट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम ऐड करना है. लेट मी ऐड वन यूजर नेम. मैं डिजिटली स्फेयर लिखूँ, चलो ठीक है मैम। ठीक है, आप इसको बाद में चेंज कर सकते हो रुपेश. ठीक है, अभी के लिए आपने ओके जो मैम। पासवर्ड मुझे शेयर किया है वही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, सो दैट आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना हो. एंड आर आपका यहाँ पर कैप्स में ही है. ठीक है, ये स्मॉल में नहीं है, दैट्स इन कैप्स. ओके. स्क्रॉल ओके डाउन मैम। ऑन इंस्टॉल बटन. एंड यहाँ पर आपका जो वर्डप्रेस है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है. ठीक है. वर्डप्रेस ओके इंस्टॉलेशन के बाद के जितने भी स्टेप्स हैं वो आपको यहाँ पर अप्लाई करने होंगे. ओके, लेट मी शो ओके यू. मैम, थैंक यू मैम। यहाँ पर आप देखिएगा what happened. Your website is working now. Now you can see your website is active now. मैम एक इसमें वो भी नहीं इंस्टॉल हो रहा था, एस एल जो सर्टिफिकेट होता है। With certificate, SSL certificate that is activated. वो activate हो गया है. ओके ओके मैम। Okay. Yes, यहाँ पर ओके आप मैम। देख सकते हो. मैं ये डब्ल्यू पी करके था ये प्रॉब्लम। W की P की वजह से भी था और आपका एक डाटाबेस भी सक्सेसफुली क्रिएटेड नहीं था. दोनों इश्यू आपके पास थे. ओके मैम। ठीक है. ओके रुपेश, तो यहाँ पर अब आप अपनी वेबसाइट को कंटिन्यू करेंगे. आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे सिंपली स्टार्टिंग विद द थीम क्रिएशन. थीम क्रिएशन से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर सीधा अपना एक स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन ऐड करके वहां से भी अपनी वेबसाइट की स्टार्टिंग कर सकते हो. इट्स ऑल योर चॉइस. ओके. मैम जो आपने वो किट 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 के थ्रू भी कर सकते हैं। विच किट? हाँ, वो भी कर सकते हो. बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही चलना है रुपेश हमें. ओके राइट. ओके मैम। यस, जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग है एक बार आप उनको देखना. प्रीवियस रिकॉर्डिंग को आप स्टार्ट करना थीम क्रिएशन से. थीम ऐड ओके मैम। करना, थीम को कस्टमाइज करना, फिर प्लगइन्स को ऐड करना और धीरे धीरे अपने पेज एंड पोस्ट को सेटअप करना. ओके मैम, कर लूंगा मैम, वो तो सब कुछ कर लूंगा मैम। कर लोगे? ठीक है, दैट्स या गुड. मैम, चलिए. अगर मैम कोई प्रॉब्लम आई तो फिर पूछ लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल रुपेश, आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो. ठीक है. चलिए, ओके आज हम मैम। कंटिन्यू करेंगे ऑफ पेज एसईओ से. आपने ऑन पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ पर प्रैक्टिस की? नहीं मैम, अब तो मैं इस पे ही थोड़ा सा हो गया था। ओके रुपेश, नो इशू. यहाँ पर आप काम कीजिएगा. यहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आपके पास स्पॉट टिकट है, वो आपको हेल्प कर पाएंगे. ओके. मैं एक चलिए. दो दिन में मैं हम्म. होम पेज और कर लूंगा टेक्निकल एसईओ।
या श्योर, बिल्कुल आप कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज दिस ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज में हमने सीखा था कि कैसे हम अपने पेजेस पर, पोस्ट पर काम कर सकते हैं, राइट। टेक्निकल में हमने सीखा था कि कैसे हम गूगल सर्च कंसोल पर अपनी वेबसाइट बनाकर काम कर सकते हैं। लेकिन ऑफ पेज में अब हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट की बाउंड्रीज के बाहर मार्केटिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट दिस ऑफ पेज इज, ऑफ पेज एसईओ आपको कैसे हेल्प कर सकता है ये भी देखिएगा। लेट मी विजिट ऑन अगेन आवर रिलायबल सॉफ्ट वेबसाइट, और यहाँ पर अब हम ऑफ पेज के बारे में थोड़ा सा कुछ चीजें डिटेल में जानें। सबसे पहले ऑफ पेज का मतलब होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर इंप्रूव करने के लिए अलग अलग लिंक बिल्डिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांड मेंशंस या ऑनलाइन रिव्यूज की हेल्प लेते हैं, राइट। लिंक बिल्डिंग का मतलब क्या है? अब जैसे मैंने वेबसाइट तो बना ली, लेकिन मेरी वेबसाइट पर ज्यादा ऑडियंस विजिट नहीं कर रही है, मेरी वेबसाइट पर ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, यानी कि या तो मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, राइट, या लोगों को मेरे प्रोडक्ट अच्छे नहीं लग रहे। तो ऐसे में गूगल हमारी वेबसाइट को रैंक क्यों करेगा, राइट। तो ऐसे में गूगल ये भी चेक करता है आपकी वेबसाइट पर कि आपकी वेबसाइट पर कितने नंबर ऑफ यूजर्स आ रहे हैं। जैसे जब मैंने आपको पोस्ट क्रिएशन सिखाया था तो कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि हम पोस्ट क्यों ऐड करते हैं, हम इस तरीके से ब्लॉग क्यों लिखते हैं अपनी वेबसाइट पर। हम ब्लॉग इसीलिए लिखते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को विजिट करा सकें। अभी आप सब अपनी वेबसाइट पर काम कर रहे हो, तो इस वेबसाइट पर काम करने के अलावा आप अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे एसईओ के बाद जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ेंगे तो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर यहाँ पर भी अपना अकाउंट बनाएंगे और मार्केटिंग करेंगे। बेसिकली पॉइंट ये आता है कि ऑफ पेज एसईओ में हम किन किन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। ऑफ पेज में सबसे पहली प्रैक्टिस है लिंक बिल्डिंग, जहां पर हम किसी सेकंड वेबसाइट पर जाकर लिंक बिल्डिंग करते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट के बारे में, अपनी वेबसाइट के पेजेस को प्रमोट करते हैं। जैसे इसके लिए रेडिट, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है। reddit.com पर यूजर अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। इन द सेम वे आप भी रेडिट पर अपनी डिजिटल मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग एजेंसी, इस तरीके की कोई भी कम्युनिटी चूज करेंगे। कम्युनिटी को चूज करने के बाद वहां पर आप अपनी पोस्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर मैंने एक रिसेंटली पोस्ट ऐड की थी, मैं आपको वो दिखाती हूँ किस तरीके से आप देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पर आपकी अचीवमेंट्स भी रहती हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर कोई पोस्ट डालना चाहते हैं तो आप क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी कम्युनिटी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा प्रोफाइल है और ये कोई भी एक कम्युनिटी मैंने यहाँ पर चूज कर ली कि मैं अपनी पोस्ट इस कम्युनिटी में ऐड करना चाहती हूँ। इस कम्युनिटी में आप कोई भी टेक्स्ट या टैग डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर कम्युनिटी के अपने रूल्स होते हैं, राइट, कि आप टेक्स्ट एंड पोस्ट तभी डाल सकते हो जब आप कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हो या आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो जिसको रीड करके लोगों को लगेगा कि आपका बिजनेस है। तो यहाँ पर हम बेसिकली किस तरीके की पोस्ट डालते हैं देखिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पर मार्केटिंग के बारे में कुछ चीजें डालनी है, सो लेट मी ऐड, मैं यहाँ पर हिंट ले लेती हूँ, क्रिएट पोस्ट फॉर रेडिट प्लेटफॉर्म। किससे रिलेटेड आपको पोस्ट डालनी है? टाइटल, टाइटल आपका क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट, फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऐड AR versus VR, फ्यूचर इन मोबाइल मार्केटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी एक लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक ले लेते हैं और उससे रिलेटेड हम रेडिट प्लेटफॉर्म पर अपनी एक पोस्ट को डाल देते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, द टाइटल इज AR VR फ्यूचर इन मोबाइल मार्केटिंग, द नेक्स्ट बिग लीप। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया। जैसे आप अपने लिंक्डइन पर अपने कंटेंट को ऐड करते हो, आप अपने फेसबुक पर पोस्ट डालते हो, ऐसे ही हम रेडिट पर भी कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालते हैं। जितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है, ऑडियंस आपकी उतनी ही ज्यादा आपके आर्टिकल्स को रीड करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक और भी चीज ऐड करते हैं, लेट्स डिस्कस, राइट। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम नीचे कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट अपनी पोस्ट पर लाना चाहते हैं, इसीलिए हम लेट्स डिस्कस इस तरीके के टर्म्स का यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से ये पूरा कंटेंट ऐड कर दिया। कंटेंट को ऐड करने के बाद अब आप यहाँ पर अपने पेज की कनेक्टिविटी भी कर सकते हो। जैसे मैंने मोबाइल मार्केटिंग, मैंने इसको कनेक्ट किया अपनी वेबसाइट की URL से, राइट। लेट मी ओपन माय वेबसाइट हियर।
ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है और यहाँ पर मैंने इसकी लिंक बिल्डिंग की है मेरी वेबसाइट के यूआरएल से इस तरीके से। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, राइट, इससे रिलेटेड चीजें। और यहाँ पर जब भी आपको कहीं पर भी मौका मिलता है, जैसे कि अगेन यू हैव वन वर्ड दैट इज मोबाइल मार्केटिंग, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके हम इसकी कनेक्टिविटी अगेन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से। इस प्रोसीजर को कहा जाता है बैकलिंक क्रिएशन। तो बेसिकली ये बैकलिंक क्रिएशन क्या है और किस तरीके से आप ये बैकलिंक ऐड कर सकते हैं। बैकलिंक का मतलब होता है कि लेट्स सपोज कोई यूजर इस आर्टिकल को रीड कर रहा है, ठीक है। इस आर्टिकल को रीड करते हुए अगर इन केस कोई भी यूजर आपके इस बैकलिंक पर क्लिक करता है तो वो आपकी वेबसाइट पर पहुंच जाएगा, राइट। यानी कि इस लिंक पे क्लिक करने के बाद अब यूजर कहां पर आ गया, आपकी वेबसाइट पर। तो ये हमारे लिए बैकलिंक का काम करेगा। यस रुपेश। मैम एक बार रिपीट करना, कैसे रुपेश, बताना। बैकलिंक का मतलब होता है अगर कोई यूजर किसी भी लिंक पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर आ रहा है, राइट। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने मोबाइल मार्केटिंग को सिलेक्ट करके अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर दिया, राइट। अब अगर आप मान लेते हैं आप रेडिट पे इस आर्टिकल को पढ़ रहे हो, इस आर्टिकल को पढ़ते हुए अगर आपने मोबाइल मार्केटिंग पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद अब आप कहां पर आ जाएंगे, मेरी वेबसाइट पर आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, ये आपका बैकलिंक हुआ। यानी कि वो लिंक जिससे यूजर मेरी वेबसाइट पर आ रहा है उस लिंक को कहा जाता है बैकलिंक। ओके मैम। यस। तो इस तरीके से आप अलग अलग रेडिट, मीडियम, इन प्लेटफॉर्म्स पर अपने ब्लॉग को सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा लिंक बिल्डिंग के अलावा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज कंटेंट मार्केटिंग, जिसमें आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने कंटेंट को लिख सकते हो, अपनी अलग अलग इमेजेस, पीडीएफ एंड पीपीटीज को शेयर कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर कर रही हूँ एंड दैट लिंक इज रिलेटेड टू योर 10,000 प्लस वेबसाइट्स। ये 10,000 प्लस वेबसाइट्स का लिंक है। यहाँ पर आपके पास आपके बैकलिंक्स को क्रिएट करने के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। ओके, लेट मी शो यू हाउ यू कैन यूज दिस। मैं आपको बताती हूँ इनको आप कैसे यूज कर सकते हैं। देखिएगा, इनमें जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं ये सभी आपकी ऑफ पेज एसईओ प्रैक्टिस है। मैं आपको चैट विंडो में इसका लिंक शेयर कर रही हूँ, हियर यू कैन सी, ठीक है। ये लिंक आप यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली प्रैक्टिस है प्रेस रिलीज। जैसे मान लेते हैं अगर आप अपनी किसी सर्विसेज से रिलेटेड कोई प्रेस रिलीज चाहते हैं। प्रेस रिलीज का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरी एक सर्विस है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाऊँ, राइट। एग्जांपल के लिए यू वांट दिस। तो आप ऐसे में अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदूज इन न्यूज़पेपर को टारगेट करते हैं तो आपको अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता है, राइट, जो आपके लिए लिटिल बिट एक्सपेंसिव हो सकती है। लेकिन अगर इन केस हम चाहते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एड को पब्लिश कर सकें, सो दीज आर द प्लेटफॉर्म्स। आप यहाँ पर किसी भी यूआरएल को कॉपी कर सकते हो और इस तरीके से पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे। मैंने पहले से बनाया हुआ है तो मैं सिंपली साइन इन कर रही हूँ। आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मेरा पहले से एक अकाउंट है इस तरीके से, तो मैंने उसको यूज किया। लेट मी ऐड। मैं भी आपको लॉग इन करके दिखाती हूँ। जस्ट अ मिनट। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड माई ईमेल आईडी हियर।
लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू टू नेक्स्ट टैब। ओके, और अब मैं यहाँ पर एक बार जीमेल से इस पासवर्ड को रीसेट कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, दैट्स वाई आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। जब आप पहली बार यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप इस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, इस तरीके से आप अपने न्यू अकाउंट को सेटअप कर सकते हो, राइट। So let me just add here, let me add my email ID and password again. So let me simply click on sign in. Let me add. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट इस वाली प्रेस रिलीज को ऐड किया। ठीक है, इस वाली प्रेस रिलीज में आप देख सकते हैं, दिस इज योर प्रेस रिलीज आईडी, दिस इज योर प्रेस रिलीज हेडलाइन, जिसको आपने जनवरी 9 2025 थर्सडे को ऐड किया था। इस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर इन केस आपको कोई और प्रेस रिलीज भी ऐड करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, देखिएगा, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखो, जैसे आप जब भी कोई प्रेस रिलीज ऐड करते हो तो ये मेरी कुछ ब्लैंक प्रेस रिलीज है और ये मेरी एक सक्सेसफुल प्रेस रिलीज है जिसको मैंने लास्ट टाइम ऐड किया था। तो यहाँ पर आप इनसे रिलेटेड अलग अलग रिपोर्ट्स भी देख सकते हो कि जो आपने प्रेस रिलीज ऐड की है उसकी रिपोर्ट क्या है, कितने क्लिक आपको मिले हैं, समरी क्या है, गूगल पर कितनी बार दिखाई गई है, ज्योग्राफिकल डिटेल्स क्या है, ये सब भी हम देख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसके लिए आपको अपग्रेडेड प्लान की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पर हम सभी चीजें नहीं देख पा रहे हैं। These are your search engine activity keyword details, right? तो यहाँ पर अभी आप कंप्लीट नहीं देख पा रहे। But if you want to submit your another press release, so you can add or manage your PR company, or you can simply click on submit your press release. Press release को submit करने के लिए you can add your headline, summary, press release से related content जो भी आप add करना चाहते हैं। टिकट सिंबल में आप अपने रेफरेंस के लिए इस तरीके से ऐड करेंगे। कीवर्ड आपका क्या है, यहाँ पर आपके कीवर्ड रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एसईओ है, एड्स है, जो भी आपको ऐड करना है यू कैन सिंपली ऐड। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट डिटेल ऐड करेंगे, कंपनी डिटेल्स ऐड करेंगे, कैटेगरी ऐड करेंगे, ऑल रीजन्स में हमें इसको सर्कुलेट करना है, कंट्री भी यहाँ से आप चूज कर सकते हो। और ये सारी चीजें ऐड होने के बाद आपको इन तीनों ऑप्शंस पर टिक करना है और कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो भी जीरो कॉस्ट में प्रेस रिलीज मिलेगी उसी को आपको सिलेक्ट करना है और जीरो रिलीज सिलेक्ट करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी प्रेस रिलीज को सबमिट कर सकते हो। ये आपके पास एक पहला मेथड है अपने बैकलिंक्स को क्रिएट करने का। जब आप कोई भी प्रेस रिलीज सबमिट करेंगे तो उसमें आप मल्टीपल बैकलिंक को ऐड कर सकते हो, यानी कि मल्टीपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अपने यूआरएल को ऐड कर सकते हो। सिमिलरली अनदर वन इज गेस्ट ब्लॉगिंग। ये सारी वेबसाइट गेस्ट ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, जिसमें आप डॉक्यूमेंट में इजीली अपना एक ब्लॉग लिखेंगे और इनमें से अलग अलग वेबसाइट पे विजिट करके आप चेक कर सकते हैं कि किस वेबसाइट पर ब्लॉग को ऐड करने का क्या मेथड है। जैसे अगर मुझे हबस्पॉट पे ऐड करना है तो मैं गेस्ट ब्लॉगिंग गाइडलाइंस में जाकर ये चेक कर सकती हूँ कि मैं किस ईमेल आईडी पर अपने ब्लॉग पोस्ट को सबमिट करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे ब्लॉग पोस्ट को रिव्यू करें। ठीक है, इसके अलावा ब्लॉग पोस्ट के लिए आप blogger.com पर अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। जैसे ये blogger.com पर मैंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है कि बहुत सारे लोग ब्लॉगर पर आते हैं, वेबसाइट को रीड करते हैं और इस तरीके से आप ब्लॉगर पर अपनी पोस्ट भी ऐड कर सकते हो। ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट होती है, राइट। तो ब्लॉगर पर जब आप इस तरीके से अपनी पोस्ट ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ भी बैकलिंक्स को क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। जैसे मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सिलेक्ट किया, बैकलिंक पर क्लिक किया और आपकी वेबसाइट का मैंने यहाँ पर यूआरएल ऐड कर दिया। सो दिस इज माय वेबसाइट, लेट मी कॉपी दिस वेबसाइट यूआरएल एंड लेट मी ऐड दिस, ओपन दिस यूआरएल इन न्यू लिंक एंड नाउ लेट मी क्लिक ऑन अप्लाई। तो इस तरीके से आप वेबसाइट का न्यू यूआरएल ऐड कर सकते हो, राइट। जितने ज्यादा यूआरएल्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट है। आप अपने अलग अलग पेजेस के यूआरएल्स को ऐड कर सकते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक्स आप अपने क्रिएट कर। गेस्ट ब्लॉगिंग के अलावा हमारे पास नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आता है बिजनेस लिस्टिंग। अब मान लेते हैं कि आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो अब आप अपनी वेबसाइट को जोमेटो पे तो लिस्ट नहीं करेंगे, अब कहां पर लिस्ट करेंगे आप बताइए रुपेश। अगर लेट्स सपोज आपका क्लाइंट प्रॉपर्टी डीलर है तो आप उनकी वेबसाइट को कहां पर रजिस्टर करना चाहेंगे? मैं रिपीट करना एक बार दोबारा। अगर इन केस आपके क्लाइंट प्रॉपर्टी डीलर है, राइट, और आपके क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है
कि वो अपने बैकलिंक्स क्रिएट करवाना चाहते हैं, वो अपने बिजनेस को लिस्ट करवाना चाहते हैं। बिजनेस को लिस्ट कराने का मतलब होता है जैसे आप अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पे ऐड करते हो, यानी कि आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग की है अमेजोन पे, ठीक है। वहीं पर अगर आपका ओके रेस्टोरेंट मैम। है तो आप जोमेटो पे लिस्ट करेंगे। यस। तो अगर कोई रियल एस्टेट का काम कर रहा है तो वो अपने बिजनेस तो को रियल कहाँ पे स्टेट पे करेंगे। बताइए। मैं रियल स्टेट्स के रिगार्डिंग। हम्म। हाँ तो बताइए रुपेश, रियल एस्टेट के लिए कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां पर हम अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं? आपके सामने स्क्रीन है, आप चेक कर सकते हो। इज देयर एनी वेबसाइट, इनमें से कोई वेबसाइट है जो हमें हेल्प कर सकती है? मैं फेसबुक। फेसबुक पे तो आप लिस्ट करेंगे ही, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बिंग, इन सब पे तो आप लिस्ट करेंगे ही, बट व्हाट अबाउट फोरस्क्वेयर्स, मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स, राइट? अगर ओके। इन केस आपकी वेबसाइट रियल एस्टेट से रिलेटेड है तो आप अपनी वेबसाइट को कहाँ रजिस्टर करेंगे? 99 एकर्स पर, राइट, फोरस्क्वेयर्स पर। अगर आपकी वेबसाइट प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो आप अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पे ऐड करेंगे, फ्लिपकार्ट पे ऐड करेंगे। सेकेंडली, अगर आपकी वेबसाइट रेस्टोरेंट से रिलेटेड है तो आप अपनी वेबसाइट को जोमेटो, स्विगी यहाँ रजिस्टर करेंगे। एंड व्हाट अबाउट अगर मेरा खुद का कोई सैलून है तो हम अपनी वेबसाइट को कहां पर रजिस्टर कर सकते हैं? बताइए रुपेश। लेट्स सपोज अगर आपका अपना खुद का कोई सैलून है तो आप उसे कहाँ रजिस्टर करेंगे? मैं ब्यूटी रिगार्डिंग हाँ, कर ब्यूटी सकता। रिगार्डिंग कहाँ रजिस्टर करोगे? फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके यस। अलावा हम मैं गूगल पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट पे भी कर सकते हैं। पिनिंटरेस्ट पे भी कर सकते हो, बिल्कुल सही कहा आपने, राइट। पिनिंटरेस्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे रजिस्टर करेंगे। और साथ ही हम गूगल पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। ओके गूगल मैम। पे अपने बिजनेस को कैसे रजिस्टर करना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको लोकल एसईओ भी कहा जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपको गूगल पर टाइप करना है मैं गूगल गूगल माई बिजनेस। प्रोफाइल क्रिएट कर उस। यस, बिल्कुल अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा रुपेश, हम किस तरीके से अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे मैम आपकी पहले वॉइस आपको, स्टक हो रही है। हाँ, गूगल पर टाइप करना है गूगल माई बिजनेस, ठीक है। इसके बाद आपको गेट लिस्टेड ऑन गूगल फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक करना है और यहां से अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देना है। एग्जाम्पल के लिए आपका कोई भी XYZ बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस का नेम ऐड करेंगे इस तरीके से। बिजनेस की कैटेगरी चूज करेंगे, कोई भी आपकी बिजनेस कैटेगरी है, राइट, आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया है फॉर एग्जाम्पल सैलून, राइट, ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपको इन्हीं में से इसको चूज करना होगा, राइट। ये देखो, ये देखो, जस्ट लाइक दिस, ब्यूटी प्रोडक्ट, राइट, ब्यूटी प्रोडक्ट सप्लायर, ब्यूटिशियन, लेट मी ऐड फॉर एग्जांपल, ओके। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और अ ऑफिस? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो लोकेशन है उस पर कस्टमर विजिट करें एक स्टोर की तरह? अगर इन केस आपके पास आपका एक लोकल स्टोर है तो ऐसे में गूगल पर अपने बिजनेस को लिस्ट करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर इन केस आप सिर्फ ऑनलाइन घर से डील कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पर विजिट करें, तो आपको गूगल माई बिजनेस पर अपने अकाउंट को बनाने की कोई जरूरत नहीं, राइट। आप इसको अवॉइड कर सकते हो। आप गूगल पर अपने बिजनेस को लिस्ट नहीं करेंगे। हम गूगल मैप पर अपने बिजनेस को लिस्ट तभी करेंगे जब हमारी अपनी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस अवेलेबल है जहां पर यूजर विजिट कर सकते हैं। तो यहां से आप यस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने बिजनेस का एड्रेस ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी ऐड वन एड्रेस हियर, लेट मी ऐड, ठीक है, ये एड्रेस मैंने ऐड किया। यू कैन ऑल्सो ऐड स्टेट हियर, ऐसे आप स्टेट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई भी आपका बिजनेस नहीं है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग अपनी कॉलोनी में बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अब हमारी कॉलोनी में या हमारी लोकेलिटी में ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो पहले से क्रिएटेड होते हैं, राइट।
तो अब हमारा एड्रेस और उनका एड्रेस सेम तो नहीं हो सकता, कोई शॉप नंबर सेम हो सकता है, कोई शॉप नंबर डिफरेंट हो सकता है, कोई टावर नंबर अलग हो सकता है, या कोई ना कोई तो ऐसी आइडेंटिटी होगी जो हमारी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, राइट। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर नन ऑफ दिस चूज करना है और ये आपका एक यूनिक एड्रेस यहाँ पर बन जाएगा। यानी कि इस तरीके से आप अपना पिन पॉइंट देख सकते हो। अगर ये पिन पॉइंट आपका नहीं है, कोई और पिन पॉइंट आपको ऐड करना है, इन दैट केस डेफिनेटली यू कैन। अब आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और द होम एंड ऑफिस विजिट? अगर आप डिलीवरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं घर पर या ऑफिस विजिट पर, तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं। ये इसलिए जरूरी होता है बिकॉज आज हम लोग एक D2C मॉडल पर भी काम करते हैं। D2C मॉडल आपका डायरेक्ट टू कस्टमर भी वर्क करता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप किसी शॉपकीपर को नहीं, डायरेक्टली अपने कस्टमर को ही देना चाहते हो, डोर स्टेप पर देना चाहते हो, तो आप ऐड कर सकते हो। सर्च एंड सेलेक्ट योर एरिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ग्रेटर नोएडा इस तरीके से अपना पूरा एरिया मैंने चूज कर लिया कि पूरे एरिया में मेरा कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, हम उसको घर तक पहुंचाएंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप अपना फोन नंबर ऐड करेंगे, वेबसाइट ऐड करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, राइट। ये सभी चीजें ऐड करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन आता है इमेजेस को ऐड करना, राइट। लेट मी क्लिक ऑन जस्ट वेरीफाई लेटर, बिकॉज ये मैंडेटरी होता है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस आवर्स को चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप बिजनेस का डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। देन आप यहाँ पर अपने स्टोर फ्रंट की इमेज ऐड करेंगे कि स्टार्टिंग से इमेज, फर्स्ट इमेज क्या है आपके स्टोर की। ये मैंडेटरी है, ये वेरीफाई करने के लिए कि आपका एक्चुअल में स्टोर है भी या नहीं, ठीक है। फोटोज ऑफ योर बिजनेस के लिए आप यहाँ पर अपनी फोटोज को ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप स्किप करके इस तरीके से चीजों को वेरीफाई कर सकती हो। आपके जितने भी चेंजेस हैं वो यहाँ पर सेव हो जाए, ठीक है। सेव हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका बिजनेस इस तरीके से आपको गूगल पर दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो आप इसी को अपने कॉन्टेक्ट अस पेज पर भी एम्बेडेड कर सकते हो। कैसे एम्बेडेड करना है, लेट मी शो यू। इसके लिए मैं अपने गूगल प्रोफाइल पर क्लिक कर रही हूँ। लेट मी ऐड गूगल माई बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन रहता है साइन इन। साइन इन का मतलब होता है कि मैंने पहले से अपना अकाउंट बनाया हुआ है और अब मैं सिर्फ अपने अकाउंट पर विजिट करके इसको सीधा साइन इन करना चाहती हूँ। तो साइन इन करने के लिए लेट मी गो बैक गूगल माई बिजनेस, एंड यहाँ पर आपके पास अलग अलग अकाउंट है जिनको आप मैनेज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मेरा एक्चुअल अकाउंट है जिसको मैं यहाँ पर मैनेज करना चाहती हूँ। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, परमानेंटली क्लोज। अगर इन केस आपको, आप वेरीफाई नहीं करते हैं इसको, तो आपको परमानेंटली क्लोज ऑप्शन दिखाई देगा। वेरीफाई करने के लिए आप बेस देखिएगा, दिस इज योर बिजनेस वीडियो। यू हैव टू रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योर बिजनेस, शो योर लोकेशन, इक्विपमेंट, proof of management. Your video is used for the verification, would not show publicly. ऐसे में आप एक ऐसी वीडियो ऐड कर सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव माई ऑन इंस्टीट्यूट फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो इंस्टीट्यूट में अब आपके पास कुछ बेंचेस होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको आप पढ़ा रहे हो, एक प्रॉपर ऑफिस सेटअप होगा। तो आपको प्रॉपर उस ऑफिस की वीडियो बनाना है और वीडियो बना के आपको यहाँ पर ऐड कर देना। इन द सेम वे आपका जो बैनर रहेगा आपको वो भी वहां पर रिप्रेजेंट करना है कि यस ये हमारा बैनर है और ये आपकी वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आप अपनी वेरिफिकेशन कर लेंगे, उसके बाद आपका ये जो अकाउंट है ये आपका एक्टिव हो जाएगा, राइट। ये आपका परमानेंटली क्लोज नहीं दिखाई देगा, ये आपका यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। इसमें आप अपनी फोटोज ऐड कर सकते हो, अपने रिव्यूज को रीड कर सकते हो, राइट। जितने भी आपके रिव्यूज हैं, रिव्यूज भी तभी आएंगे जब ये वेरीफाई होगा। फोटोज ऐड करेंगे, पोस्ट ऐड करेंगे, परफॉर्मेंस, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को एडिट कर सकते हो, अपनी बुकिंग्स को भी एडिट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देखिएगा इस तरीके से आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी, ये देखिए। तो जब भी कोई यूजर गूगल पर आपको सर्च करेगा, उसको कॉल, शेयर, वेबसाइट, सेव, रिव्यूज, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे। मैम, यस। मैम जैसे हमने गूगल माई बिजनेस पे प्रेजेंस बना ली अपनी, और मैम इसको ऊपर शो करना होगा, वो कैसे होगा? कहाँ पर शो करना है? मतलब मैम सब, जैसे हमारे एरिया में सब बहुत ज्यादा है जैसे लोग, और हमारी साइट सबसे ऊपर ओके, शो। ऑप्टिमाइज करना है। अंडरस्टैंड रुपेश, आप ये कहना चाह रहे हैं अगर आप गूगल मैप पे अपनी सर्विसेज को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं आपको लोकल एसईओ से यस। रिलेटेड एक चेकलिस्ट दिखाती हूँ कि बेसिकली आप क्या कर सकते हो। देखिएगा,
दिस इज योर लोकल एसईओ चेकलिस्ट। इसमें सबसे पहले जो भी आपका लोकल नेम है आप उसको यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लोकल एसईओ कर रही हूँ कहां पर, मान लो दिल्ली एरिया में, ठीक है। मैं आपको लोकल एसईओ की ये चेकलिस्ट दिखा देती हूँ सो दैट कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लोकली अपने बिजनेस को हम लोग इस तरीके से रैंक कर सकते हैं। दिस इज जस्ट चेकलिस्ट हियर, ठीक है, देखिएगा। सबसे मैम पहले मान आप लीजिए अपनी वेबसाइट बनाएंगे। यस, लोकली मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पर ऐड किया डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, तो मैं आपको बताती हूँ लोकली आप अपने बिजनेस को कैसे रैंक कराएंगे, देखिएगा। अब देखो, सबसे पहला रिजल्ट मुझे यहाँ पर किसका दिखाई दे रहा है, गूगल मैप। आप देख सकते हैं ऊपर कोई ऑर्गेनिक रिजल्ट नहीं है, सीधा आपका गूगल मैप का रिजल्ट है। और गूगल मैप के रिजल्ट में अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, एडवर्ट और डिजिटल मीडिया, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है। अब आपका पॉइंट ये है कि आप अपने रिजल्ट को कैसे टॉप पर ला सकते हो। सबसे पहला, आपने जो लोकेशन ऐड की है, आपकी उस लोकेशन में जितने भी यूजर हैं, आपका कंपटीशन सिर्फ उन लोगों से है। जैसे यहाँ पर ये देखिएगा, ये रिजल्ट मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि सबसे नियर रिजल्ट मेरे ये वाला रिजल्ट है, उसके बाद मेरे नियर मेरा ये वाला रिजल्ट है, और उसके बाद ये वाला रिजल्ट है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, यानी कि इसमें आपका कौन से वाला फंडा अप्लाई हो रहा है, नियरेस्ट। दूसरा, आपका जो टाइटल है जो आप गूगल माई बिजनेस पर ऐड करते हैं, उसमें आपके दो कीवर्ड जरूर ऐड होने चाहिए। एक आपका सर्विस कीवर्ड और एक आपका लोकल कीवर्ड। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप नोएडा में डील कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नोएडा डिजिटल मार्केटिंग अकेडमी। चाहे डिजिटल मार्केटिंग अकेडमी आपका यूआरएल है या नहीं, आपका वेबसाइट नेम है या नहीं, आप सीधा लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा एडवर्टा डिजिटल मीडिया, आप लिख सकते हो एडवर्टा नोएडा डिजिटल मीडिया, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ऐसा ऐड करने से आपके लोकल एरिया में आपकी वेबसाइट को टॉप प्रायोरिटी मिलेगी। साथ में जितनी ज्यादा रिव्यूज आपके पास आएंगे, जितनी ज्यादा डिटेल्स आप ऐड करेंगे, उतनी ही आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं इस रिजल्ट पे क्लिक करती हूँ, एंड नाउ आई वांट टू शो यू कि किस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ये देखिएगा, ये आप इस तरीके से इसको देख पा रहे हैं, ये देखिएगा सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐड है, रिव्यूज भी ऐड है, एवरीथिंग इज एडेड हियर। तभी आप इसको फर्स्ट पोजीशन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अपने बिजनेस को फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कराने के लिए सबसे पहला वेबसाइट बनानी है। डोमेन नेम में लोकल कीवर्ड को चूज कर सकते हो, सर्विसेज में लोकल कीवर्ड को यूज कर सकते हो, गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर करके वहां पर लोकल कीवर्ड को यूज कर सकते हो। जितना मैम नियरेस्ट आपके कस्टमर रहेगा उतना जल्दी आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। मैम ओके रुपेश, यस। मैम बिना वेबसाइट के नहीं ये हो कर पाएगा सकते हो, मतलब? बिल्कुल होगा रुपेश। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पर ऐड करें। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तब भी आप गूगल माई वेब बिजनेस पर अपनी वेबसाइट बना सकते हो, सारी डिटेल्स को ऐड कर सकते हो, अकाउंट को वेरीफाई करा सकते हो, जिसमें आपका बिजनेस, आपकी वेबसाइट बने या ना बने, लेकिन गूगल माई बिजनेस पर जरूर रैंक होगा। अगर कोई नहीं सर्च मैम, कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, यस। अगर आपकी वेबसाइट क्रिएटेड भी नहीं है, आप सिर्फ ऑफलाइन डील करते हैं, तब भी आपका बिजनेस यहाँ पर दिखाई देगा। नहीं मैम, बिजनेस तो दिखाई देगा मैम, रैंक मतलब कि मैम वेबसाइट के बिना कर जाएगा ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल हो पाती है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको प्रेफरेंस वेबसाइट के साथ ही मिलती है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, वेबसाइट होती है तो कुछ और ज्यादा इंफॉर्मेशन गूगल दे पाता है यूजर को, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आपकी वेबसाइट क्रिएट होनी चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है रुपेश। मैम मान लीजिए मैं, जैसे क्लाइंट आया हमारे मेरे पास आया था एक, हम्म। वो कह रहे थे हमने सिर्फ इसको रैंक करवाना है अपने गूगल माई बिजनेस को। हम्म। और मैम फिर उसके में लोकल एसईओ करना पड़ेगा उनका? बिल्कुल लोकल एसईओ करना होगा। अगर इनकी वेबसाइट नहीं है तो आप वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं कर सकते हो, क्योंकि लोकल एसईओ में वेबसाइट का रोल होता है, राइट। यस मैम, यहाँ यस। पर रैंक कराने के लिए आपको सिर्फ गूगल माई बिजनेस पे अकाउंट बनाना है, और अकाउंट के अंदर आपको उनकी सर्विसेज से रिलेटेड कीवर्ड को ऐड करना है, या उनकी लोकेशन से स्पेसिफिक कीवर्ड को ऐड ओके करना है। मैम। सिर्फ ये दो चीजें आप गूगल माई बिजनेस पे कर सकते हो, ठीक है। बाकी ओके चीजें मैम, जो हम थैंक यू करते मैम। हैं वो हमारी वेबसाइट के लिए है। जैसे मान लेते हैं कि मेरी टैक्सी सर्विस है, और टैक्सी सर्विसेज किससे रिलेटेड है, जोधपुर टैक्सी सर्विस से रिलेटेड है। अब आप देखो कि जोधपुर टैक्सी सर्विस, यानी कि ये जोधपुर वर्ड मेरी वेबसाइट में भी एडेड है, मेरे डोमेन नेम में भी एडेड है, और मेरे पेज पे भी एडेड है। तो मेरा प्राइमरी कीवर्ड में ही मेरा ये लोकल कीवर्ड ऐड है, इसीलिए मेरी ये वेबसाइट लोकली रैंक करती है, ठीक है। तो लोकल एसईओ के केस में आप अपना लोकेशन बेस्ड कीवर्ड चूज कर सकते हैं।
ये आपका प्राइमरी कीवर्ड रहेगा, जहां पर आप अपना प्राइमरी कीवर्ड ऐड करते हैं ऑल इन वन एसईओ में, वहीं पर आपको इस कीवर्ड को ऐड करना है। ओके। ओके मैम। या ओके रुपेश। ओके, इसके अलावा अब हम आपके पास और भी वेज हैं, राइट, जिसकी हेल्प से आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म सबमिशन, जैसे कि रेडिट मीडियम, रेडिट पर अभी मैंने आपको बताया, उसी तरीके से आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। सोशल बुकमार्किंग, आर्टिकल सबमिशन, जैसे अभी आपने ब्लॉग सबमिशन किया था, उसी तरीके से मल्टीपल वेबसाइट पर आप आर्टिकल सबमिशन भी कर सकते हो। ठीक है। आर्टिकल सबमिशन के अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप क्वेश्चन एंड आंसर्स क्रिएट कर सकते हो। क्वेश्चन एंड आंसर्स को कैसे क्रिएट करना है ये भी देखिएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक quora.com प्लेटफॉर्म है। तो क्वेरा पर आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, और आपके पास क्रिएट अ क्वेश्चन क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस को हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम अपनी ऑडियंस के बारे में जान सकें, या अगर हमारे माइंड में कोई क्वेरी है तो हम उसका आंसर ले सकें, इसीलिए हम अलग अलग क्वेश्चंस का यूज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर्स के अलावा आपके पास वेब टू सबमिशन है, जहां पर आप अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हो, जैसे कि blogger.com, linkedin.com, राइट, आपके पास medium.com, आप इनको सबमिट करते हैं। इसके अलावा माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट, जहां पर आप देख सकते हैं, ये आपके पास माइक्रो ब्लॉगिंग है, linkedin.com, राइट, मीडियानेट, facebook.com, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं। जॉब पोस्टिंग, ये कुछ एडिशनल वेबसाइट्स मैंने यहाँ पर ऐड की हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी भी एडिशनल वेबसाइट्स की जरूरत है तो आप उनका रेफरेंस भी यहाँ पर ले सकते हो। तो बेसिकली बैकलिंक्स क्रिएट करने का मतलब होता है कि हम अपनी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाना चाहते हैं। तो अगर कोई भी यूजर मेरे किसी आर्टिकल को पढ़ रहा है, ब्लॉग को पढ़ रहा है, किसी पीपीटी को पढ़ रहा है, वो सब हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सके। अपनी कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक्स को चेक करने के लिए आप AREHF इस टूल को यूज करेंगे, जिसके बैकलिंक चेकर को आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज योर फ्री बैकलिंक चेकर टूल। इसका URL मैं आपको चैट विंडो में मेंशन कर रही हूँ। इस बैकलिंक चेकर टूल की हेल्प से आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है, राइट, वो किन बैकलिंक्स को यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको रिलायबल सॉफ्ट डॉट इस पेज के बैकलिंक्स के बारे में बताऊं, देखिएगा, let me add, this is your exact URL, or you can also use subdomain here. You can click on check backlink, right? और यहां से मैं इसको चेक कर सकती हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये देखिएगा, डोमेन रेटिंग, बैकलिंक्स, लिंक, वेबसाइट, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। डोमेन रेटिंग क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास टू टर्म्स हैं, एक है DA और एक है PA। DA का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी। ये दोनों ही हमारे मोज के इंपॉर्टेंट टूल हैं, मोज, DA एंड PA चेकर, राइट। ये क्या है इसको समझिएगा। जैसे अभी आपने अपनी वेबसाइट बनाई और आपकी वेबसाइट अकॉर्डिंग टू गूगल कितना बेटर परफॉर्म कर रही है, ये आप डोमेन अथॉरिटी से चेक कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपने मुझसे पूछा कि मैंने अपनी वेबसाइट बनाई और मेरी वेबसाइट पर बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो क्या गूगल के अकॉर्डिंग मेरी वेबसाइट अच्छी वेबसाइट है? तो इसकी वैल्यू हमें इस डोमेन अथॉरिटी चेकर से मिलेगी। जैसे हम सब जानते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब वो वेबसाइट है जो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है। तो बेसिकली हम इन वेबसाइट को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, हम इनका URL इस डोमेन अथॉरिटी चेकर में ऐड करें। जैसे रिलायबल सॉफ्ट बहुत अच्छी वेबसाइट है और ये आपके पास एक पेज है, लेकिन मुझे क्या चेक करना है, मुझे तो इस पूरे डोमेन को चेक करना है। डोमेन का मतलब होता है मेरी पूरी वेबसाइट, राइट। तो जब मैं डोमेन को यहाँ पर डालकर चेक DA पर क्लिक करूंगी तो यहां से मुझे ये पता चलेगा कि ये वेबसाइट कितना बेटर परफॉर्म कर रही है। अगर किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी होती है, अबव 45, 40 रहती है, इट मींस कि वो वेबसाइट गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा परफॉर्म कर रही है, और आप भी उन्हीं वेबसाइट्स को टारगेट करेंगे अपने बैकलिंक्स को जनरेट करने के लिए। इसके अलावा, डोमेन के अलावा, अब अगर मैं पेज अथॉरिटी की बात करूं, तो वी ऑल्सो हैव सम फ्री टूल जो आपको पेज अथॉरिटी के बारे में बताएंगे। जैसे मैंने डोमेन अथॉरिटी चेक किया, ऐसे ही आप पेज अथॉरिटी चेक करेंगे और आप ये देख सकते हैं कि ये वाला पेज कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये आपके पास कुछ वेबसाइट्स हैं और ये इन वेबसाइट्स की डोमेन रेटिंग है। ये जितनी 100 के नियर होती है उतना ही हमारे लिए बेस्ट होता है।
और इनके ऊपर ये हमारे पेजेस हैं, और इन पेजेस के अंदर हमने अपने कंटेंट को ऐड किया है, और जो कंटेंट हमने ऐड किया है हमने उस कंटेंट को अपनी वेबसाइट के इन पेजेस के साथ कनेक्ट कर दिया है, राइट। तो इस तरीके से हम अपने बैकलिंक्स को बना सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक्स को चेक भी कर सकते हैं। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। आपको डेली बेसिस पर टारगेट करना है कि आप कम से कम 2 या 3 बैकलिंक्स अपनी जरूर बनाएं, चाहे आप ब्लॉगर यूज करें, रेडिट यूज करें, राइट, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करें, लेकिन कम से कम 2 या 3 प्लेटफॉर्म आपके ऐसे जरूर होने चाहिए जो आपको डेली क्रिएट करने हैं, कि अगर कोई भी यूजर इस आर्टिकल को रीड कर रहा है तो एटलीस्ट वो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट के काम आता है। इसके लिए कोई श्योरिटी नहीं है कि यूजर इस आर्टिकल को पढ़ेगा ही या यूजर क्लिक करेगा ही, कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये एक बेटर रिजल्ट के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं साइट ऑडिट की, कि अगर हमें एक कंप्लीट वेबसाइट का ऑडिट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे एग्जांपल के लिए ये एक वेबसाइट है SEOoptimizer.com। ठीक है, मैं इस SEOoptimizer.com इस वेबसाइट का URL आपको चैट विंडो में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेट मी ऐड दिस URL। इसी सेम URL को अब मैं यहां पर भी ऐड कर देती हूँ। लेट मी ऐड दिस SEOoptimizer.com। जब आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। इस वेबसाइट का फ्री वर्जन हमारे पास होता है, प्रीमियम वर्जन हमारे पास नहीं है। इसके फ्री वर्जन में आप एक दिन में एक ही वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हो। ऑडिट कैसे करते हैं समझिएगा। ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट का URL है। मैंने इस URL को यहाँ पर ऐड किया और इस ऑडिट बटन पे क्लिक किया। तो बेसिकली SEO ऑडिट का मतलब होता है कि अभी आपने जो भी ऑन पेज, ऑफ पेज टेक्निकल प्रैक्टिसेस सीखी हैं, वो सभी चीजें आप किसी भी वेबसाइट में चेक कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है रुपेश, और अभी आपने अपनी वेबसाइट पर काम करना स्टार्ट नहीं किया, राइट। तो आप स्टार्टिंग में ही ऑल इन वन SEO प्लगइन को ऐड करके अपने सभी पेजेस एंड पोस्ट का साथ साथ SEO कर सकते हो। लेकिन जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, वो पहले से अपनी वेबसाइट को उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। जैसे ये जो रिलायबल सॉफ्टवेयर, लेट्स सपोज ये आपका क्लाइंट है, और ये क्लाइंट आपको कहता है कि आपको मेरी वेबसाइट के लिए SEO एक्टिविटीज करनी है, तो आप तो वेबसाइट देखते ही कंफ्यूज हो जाओगे। इतनी बड़ी वेबसाइट, इतने सारे पेजेस, यस, और इन पेजेस पर क्या एरर है उनको कैसे फिगर आउट करें और उनको कैसे फिक्स करें, और अपने क्लाइंट को कैसे बताएं कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीजें हैं जिन पर हमें काम करना है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें SEO ऑडिट टूल का यूज करते हैं। SEO ऑडिट टूल में आप जिस भी वेबसाइट का URL ऐड करेंगे, आपको वहां वेबसाइट का स्कोर मिलेगा और ये पता चलेगा कि इस वेबसाइट में कितना SEO एक्टिविटीज को करने की जरूरत है। SEO स्कोरीज है, यानी कि वेबसाइट पर ऑलरेडी SEO का काम बहुत अच्छे से हुआ है, जहां पर आप ऑन पेज SEO में प्रॉपर, ये देखिएगा यहां से मैं आपको दिखाती हूँ, आप पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। पेज का टाइटल ओके है लेकिन डिस्क्रिप्शन ओके नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके पेज की जो लेंथ है वो ज्यादा है, वो आपके पास 120 to 160 कैरेक्टर्स के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें हैं, या तो क्लाइंट आपको वर्डप्रेस का एक्सेस देगा, तो जैसे मैंने आपको मेटा डिस्क्रिप्शन एडिट करना सिखाया है ऑल इन वन SEO टूल की हेल्प से, आप वैसे एडिट करेंगे, या फिर आप क्लाइंट को ये सजेशन दे सकते हैं, रिकमेंडेशन शेयर कर सकते हैं एक्सेल शीट में, कि आपको अपनी वेबसाइट पे इस स्पेसिफिक URL पर, इस होम पेज पे मेटा डिस्क्रिप्शन को चेंज करना, राइट। ऐसा करने से आपकी वेबसाइट में ये काफी सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज योर मेटा डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन पर विजिट करेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन के बाद देखिएगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज स्निपेट प्रीव्यू, इस पेज का सर्च इंजन रिजल्ट पेज किस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको एरर पता चल गया, ऑन पेज एरर आपको क्या बताना है, मेटा डिस्क्रिप्शन। इसके बाद hreflang यूजर्स, यस, इस कीवर्ड का यूज किया गया है, इसको हम मल्टी लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेज आपका किसी और लैंग्वेज में नहीं बना है, इसीलिए हमें इस कीवर्ड की जरूरत भी नहीं है।
इसके बाद आता है लैंग्वेज एट्रीब्यूट। यस, ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट हमारा सक्सेसफुली एडेड है। हमारे H1 टैग ऐड है, H2 टैग ऐड है, H4 टैग ऐड है। और ये हमारे वो कीवर्ड हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कीवर्ड कंसिस्टेंसी को सबसे ज्यादा हम रिव्यू कर सकते हैं हमारे सैमरश टूल की हेल्प से। तो आप सैमरश को भी यूज कर सकते हो अपने कीवर्ड्स के बारे में जानने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका प्राइमरी कीवर्ड आपके टाइटल में ऐड होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कीवर्ड पेज फ्रीक्वेंसी में भी ऐड होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं व्हेन वी स्क्रॉल डाउन, ये आपके पास अलग अलग फ्रेजेस हैं। जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड फ्रेज हैं। ये आपके बाय डिफॉल्ट एडिड नहीं होते हैं, इनको ऑटोमेटिकली ये टूल डिटेक्ट करता है कि इस पेज से रिलेटेड आपका ये वाला कीवर्ड हो सकता है। अमाउंट ऑफ कंटेंट इज गुड। इमेज एट्रीब्यूट में आप देख सकते हैं दैट इज नॉट गुड। इमेज एट्रीब्यूट में आप देख सकते हैं कि आपके पास ऐसी बहुत सारी इमेज फाइल हैं, जैसे कि ये वाली फाइल्स, ना तो जिनका यूआरएल प्रॉपर है और ना ही इनमें ऑल टैग का यूज किया गया है। तो हम वन बाय वन करके अपनी मीडिया फाइल में इन इमेजेस को ओपन कर सकते हैं और इन सभी में अपना ऑल टैग्स ऐड कर सकते हैं। कैनोनिकल टैग ऐड है, नो इंडेक्स टैग, नो इंडेक्स हेडर टैग, ये हमारा प्रोटेक्टेड है। नो इंडेक्स का मतलब होता है कि आपने कोई भी robot.txt में किसी फाइल को नो इंडेक्सिंग में ऐड कर दिया, राइट? तो वो हमने नहीं किया है, दैट्स व्हाई दैट इज कंप्लीटली ओके। एसएसएल सर्टिफिकेट हमारा इनेबल है, ये robot.txt फाइल और साइट मैप भी इनेबल है, एनालिटिक्स भी इनेबल है। आप देख पा रहे हैं कि कितना आसान है यहां से किसी की भी वेबसाइट को जानना। दीज आर द लिंक। डोमेन स्ट्रेंथ अच्छी है, पेज स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि मुझे पेज पर कनेक्टिविटी को बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा ये आपके टॉप बैकलिंक्स हैं जहां पर हमें सबसे अच्छा डाटा आता है, तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपकी फ्रेंडली लिंक्स, नॉट फ्रेंडली लिंक्स, ये आप देख सकते हो। यूजेबिलिटी यानी कि आपकी वेबसाइट मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, और स्पीड से रिलेटेड भी आप देख सकते हैं कि हमें कोई भी इशू नहीं आ रहा है। परफॉर्मेंस रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी फाइन, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज योर सोशल रिजल्ट। सोशल रिजल्ट में आपके पास फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, राइट, ये सभी आपके कनेक्टेड है। आपका लोकल एसईओ में आपका मोबाइल लोकल स्कीमा ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसके लिए आप सजेशन दे सकते हैं दैट वी कैन कनेक्ट दिस। ठीक है। और ये सारे आपके सर्वर्स हैं जो आपके बैकएंड पर एडिट होते हैं। तो इस पेज को रीड करने के बाद अगर आप इस कॉम्पिटिटर वेबसाइट के अनदर पेजेस को भी रीड करना चाहते हैं, तो इसी स्टाइल से आप इस टूल को यूज करके इन सबको यूज कर सकते हो। लेकिन इसके लिए यहाँ पर आपको इसका प्रीमियम वर्जन लेना होगा, इसके फ्री वर्जन में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। आप एक दिन में एक ही पेज का फ्री वर्जन में यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको एसईओ ऑप्टिमाइजर का प्रीमियम वर्जन लेना है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनमें आप साइट चेकर टूल या फिर साइट ऑडिट टूल इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, आपको मल्टीपल टूल्स ऑप्शन मिल जाएंगे। साइट चेकर प्रो, एसईओ साइट चेकअप, राइट, फ्री एसईओ चेकर, एसईओ ऑप्टिमाइजर, ये मैंने अभी आपको बताया, वेबसाइट चेकर, राइट, आपको बहुत सारे टूल्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी वेबसाइट का ऑडिट करते हैं। तो इन ऑडिटिंग के बाद आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा किसी भी वेबसाइट पर काम करने के। इज इट क्लियर नाउ? प्लीज हेल्प मी आउट विद यस और नो। यस मैम। दैट्स ग्रेट रुपेश। ठीक है। तो रुपेश, दिस इज ऑल अबाउट दिस एसईओ। ये एसईओ के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू था जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब पॉइंट आता है कि वो क्या क्या चेंजेस हैं जो हमें अपनी वेबसाइट में करने चाहिए, जो कि अभी रिसेंटली गूगल ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो उनमें से काफी सारे ऐसे चेंजेस हैं जो मैं आपको ऑलरेडी ऑन पेज एसईओ के दौरान बता चुकी हूँ, राइट? कि आपको अपना स्कीमा मार्कअप ऐड करना है, अपनी वेबसाइट पर स्ट्रक्चर ऐड करना है, जो पैराग्राफ आप ऐड कर रहे हैं आपके पैराग्राफ भी कंप्लीटली रैंक हो रहे हैं, राइट? लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट एआर वीआर के बारे में जो हमारी रिसेंटली, जिसको हम फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग बोल सकते हैं, कुछ ऐसी नई अपडेट्स भी गूगल की तरफ से आई। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दैट एडवांस गूगल एल्गोरिथम्स, जो कि न्यूली अपडेटेड है और जिसे हम फ्यूचर ऑफ एसईओ कह सकते हैं, जिसकी वजह से आज बहुत सारी वेबसाइट्स भी इंपैक्ट हो रही हैं। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैम। यस यस रुपेश। मैम, जो वेबसाइट के रिगार्डिंग कंटेंट है मैम, वो किस से हेल्प ले सकते हैं?
कंटेंट लिखने के लिए? चैट जीपीटी की आप हेल्प ले सकते हो, गूगल जेमिनी की आप हेल्प ले सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट की आप हेल्प ले सकते हो, परप्लेक्सिटी एक टूल है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। इमेज एंड कौन सा? वीडियो जनरेशन के लिए आप कैनवा की हेल्प ले सकते हो, और एडोब इफेक्ट की आप हेल्प ले सकते हो। ओके मैम। ठीक है रुपेश। मैम एक जो वेबसाइट मैं वर्डप्रेस की ओपन करने के लिए मैं, जो आपने बताया था, तो दोबारा बता दो। वर्डप्रेस वेबसाइट ओपन करने के लिए, मैं यह मैम जो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, ओके ओके, WP आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है, एंड देन मैं आपको चैट विंडो में भी शेयर कर रही हूँ, \WP-admin, ये आपको ऐड करना है। ओके मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके ओके रुपेश, so this is all about from my side in the today's session. Thank you so much, have a great day, thank you.